Hello student, today we are going to learn next problem number 5. Death of partner, problem number 5, and page number 203, problem number 3. Okay. Uh, Actually, in that problem, we learn same adjustment, but just only a different adjustment is here. Commission and as well as creditors means liabilities value increases. Okay. I'll read problem. ये प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 203 प्रॉब्लम नंबर 3 में से है और इसमें हम डिफरेंस सिर्फ इतना देखने वाले हैं क्रेडिटर्स की वैल्यू मतलब लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड कमीशन बाकी सेम एज इट इज है बट फिर भी एक बार देखो कैसे सॉल्व किया जाता है ये राम माधव एंड केशव आर partners sharing profit or losses in the ratio 5:3:2 means here Ram, Madhav and Keshav's old ratio is 5:3:2. Okay, everybody understood? Old ratio of partner is what? 5:3:2. In that problem, you are required to prepare only Keshav's account and working note also. Okay, but we are going to prepare a balance sheet, revaluation account, and all partners capital account. Okay, see. Uh, Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follow. They given here old balance sheet as on 31st March 2018. Liability side they given first general reserve. Everybody know general reserve is a part of accumulated profit. That's why we transfer to partners capital account credit side and that amount distributed in all partners in their old ratio. Old ratio is what? 5:3:2. So that's why we distributed this amount to all partners in their ratio. I'll show you how can we distribute it. See, general reserve distributed in the ratio 5:3:2. That answer for Ram 12,500, for Madhav 7,500 and for Keshav 5,000. Okay. Next one, balance they given creditors. Creditors we recorded new balance sheet liability side where we recorded new balance sheet liability side. Unpaid rent means what? Again यहाँ पे क्या है? Unpaid मतलब outstanding rent है and outstanding rent is our liability, is a payable amount. That's why we recorded new balance sheet liability side. Capital account of Ram, Madhav and Keshav that can be recorded partners capital account credit side. गुडविल स्पेंडिंग रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके हिसाब से वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स को. ओके, देन लूज टूल्स दिया है, लूज टूल्स रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल सॉरी लूज टूल्स दिया है 50,000 दैट कैन बी रिकॉर्डेड न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. डेटर्स न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. लाइव स्टॉक मीन्स एवरीबडी नो livestock again assets, that's why we recorded new balance sheet asset side. Cash new balance sheet asset side. Okay, see here they given additional information related to partners. Keshav is died on 1st July 2018. Okay, focus on date because date is very important to calculate profit and as well as other amount related to that particular partners. So okay, so 1st July Keshav's died on 31st July 2018. Following adjustment were agreed by as per partnership deed. देखो यहाँ पे 31st जुलाई को क्या हो रही है? केशव की डेथ हो रही है. तो कितने मंथ होते हैं कैलकुलेट करते? अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरे पकड़ने. तो कितने मंथ हो रहे? 4 मंथ हो रहे. मतलब वो 4 मंथ फर्म के लिए काम कर रहा था.
तो जो भी कैलकुलेशन निकालना है हमें अभी प्रॉफिट निकालना है तो कितने मंथ का निकालेंगे, 4 मंथ का निकालेंगे। ओके, याद रहेगा सबको। या कमीशन निकालना होगा या उसकी ड्राइंग के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो ये सब कैलकुलेशन हम कितने मंथ के लिए करेंगे, जितने मंथ वो फॉर्म में था। तो कितने दिन काम कर रहा था वो, 4 मंथ काम कर रहा था, तो 4 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। याद रहेगा कैसे, 31 जुलाई लिखा है, दैट्स वाई 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने मंथ होते हैं, 4 मंथ। कैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, देन दी गिवन फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय ₹10,000। क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अभी, मतलब लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इज अ एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे लिखे जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। याद रहेगा सबको, लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो लिखी जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ओके, देन नेक्स्ट वन दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है, 2 years, सॉरी परचेसिंग ईयर कितने दिए, 2 years दिए, एवरेज प्रॉफिट ईयर कितने दिए, 5 years। तो इनका समेशन करेंगे हम, फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे इन शेयर ऑफ केशव एंड फिर उसे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर चेकआउट करेंगे कि क्या है, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, जितनी भी अमाउंट रेज हो चुकी है वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑल पार्टनर्स का इन देयर रेशो। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वन, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे लूज टूल्स की न्यू वैल्यू 80,000 है, लाइव स्टॉक की कितनी है, 1,20,000 है। RDD वॉज मेंटेन एट 10%। RDD मेंटेन क्या करना है, 10% करना है। यह आप हमारे जो भी डेली एडजस्टमेंट करते थे उसी टाइप से है। कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव प्रॉफिट फॉर 2018-19 वॉज एस्टिमेटेड। पहले देखते हैं, कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। केशव को क्या करना है, कमीशन देना है पर मंथ 2,000। तो क्या होगा, पर मंथ 2,000 है तो कैलकुलेट करो 4 मंथ के लिए कितना, 4 मंथ पता चला, मतलब कैसे आया यहाँ पे 4 मंथ, तो 4 मंथ काम कर रहा था, दैट्स वाई से 4 मंथ का ही कैलकुलेशन होगा। तो कैसे होगा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे कमीशन टोटल कितना आ रहा है केशव का, 8,000। देन हमें जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट के लिए, वो उसके लिए एक ही ईयर दिया, डायरेक्टली 45,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे एंड शेयर ऑफ केशव अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो जब उसकी डेथ हो रही है तब तक हमें कैलकुलेशन करना है, तो मतलब 4 मंथ ही हो रहे। ओके, ये था ये एडजस्टमेंट। और आपको बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट, यही बताया है। ओके, सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है, बट इन दैट प्रॉब्लम आई विल शो यू ऑल दोज थिंग्स कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, बैलेंस शीट एंड एज वेल एज वर्किंग नोट बोथ वन, प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस की वर्किंग नोट एंड एज वेल एज गुडविल की वर्किंग नोट। तो दिखाती हूँ मैं अभी, पोस्टिंग दिखाती हूँ अभी मैं पहले आपको। पोस्टिंग मैंने किए है, ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला, ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस दिया था 1,75,000 एंड 50,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे। जनरल रिजर्व भी मैंने बैलेंस शीट से, ओल्ड बैलेंस शीट से लिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया जनरल रिजर्व राम के लिए, माधव के लिए एंड केशव के लिए। ये है पोस्टिंग, पोस्टिंग में इतनी अमाउंट थी। और पोस्टिंग देखते बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में देखो क्या है, रेंट, अनपेड रेंट मतलब है आउटस्टैंडिंग रेंट, उसकी पोस्टिंग की मैंने। बैंक की अमाउंट एज इट इज़ लिखी, डेटर्स इनर में लिखे, लूज टूल्स इनर में, स्टॉक इनर में, देन ये सस्पेंस अकाउंट, ये सब पोस्टिंग थी। ओके, ये पोस्टिंग होने के बाद देखते हैं अभी क्या है एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 से क्या है, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज रुपीज बाय 10,000। कितने रुपीज़ से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे, 10,000 से। तो पहले 1 लाख अमाउंट थी,
तो 1,00,000 अमाउंट के बाद क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या होगी 1,10,000। ये हो गया हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट। कहाँ पे किया मैंने, क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किया है। डायरेक्टली मैंने लिखा, डायरेक्टली लिखते तो भी चलेगा, या ऐड करके 1,00,000 के अंदर 10,000 ऐड करो और लिखो तो भी चलेगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 10,000। कितने रुपीज़ 10,000, क्योंकि 10,000 से लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी। तो हो गया 10,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखो कैलकुलेट करके लिखा है यहाँ पे मैंने, कितने रुपीज़ से हो गया इंक्रीज, तो 10,000 से। तो 10,000 लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड क्यों लिखा है, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ओके, देन देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बताया है, गुडविल कैलकुलेशन करना है। तो देख गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फिर अभी गुडविल कैलकुलेट के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट किए है। वर्किंग नोट दिखाती हूँ मैं अभी आपको। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की अमाउंट मतलब पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा एज पर आवर पहला फर्स्ट कैलकुलेट क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट आया 2,50,000। यहाँ पे लॉस था तो लॉस लेस होगा। देखो ये सारे 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 ये प्रॉफिट थे, और ये क्या था, लॉस था। तो लॉस क्या हो गया, ये लॉस था तो लॉस क्या हो गया, लेस हो गया। लॉस क्या हो गया, लेस हो गया। लॉस लेस हो गया, और बाद में आंसर आया हमारा 2,50,000। 2,50,000 के बाद मतलब ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट के बाद निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 2,50,000 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 थे, तो आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट का 50,000। ओके, बाद में कैलकुलेट करते हैं गुडविल की अमाउंट। तो गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 50,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर प्रॉब्लम में दिए है 2 ईयर्स, तो आंसर क्या आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है। ओके, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे गुडविल की वैल्यू क्या दी थी, 50,000 दी थी। अभी हमारे टोटल गुडविल की अमाउंट क्या आ रही है, 1,00,000 आ रही है। मीन्स क्या हो रहा है, गुडविल कितने रुपीज़ से रेज हो गए, 50,000 से। तो वो 50,000 1,00,000 में से माइनस करते 50,000, तो 50,000 से रेज हो रहे, तो वो 50,000 ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ऑल पार्टनर्स को इन देयर रेशो। तो अभी मैंने ये सिर्फ एक करके दिखाया यहाँ पे, 50,000 में से सिर्फ केशव का हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया यहाँ पे। तो केशव के लिए आंसर क्या है, 10,000 आया। अभी देखते हैं उसकी पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे। पोस्टिंग करेंगे, कितने रुपीज़ आई थी गुडविल की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू आई थी 1,00,000, तो उसकी पोस्टिंग फर्स्ट इफेक्ट हो गया ये, वहाँ पे 1,00,000 का पहले 50,000 था, 50,000 में ऐड हो गए 50,000, और बाद में क्या हो गया, गुडविल की वैल्यू रेज होगी 1,00,000। ओके, तो 50,000 से इंक्रीज होगी, दैट्स वाई उसका इफेक्ट होगा 50,000 का इफेक्ट होगा। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 25,000 फॉर राम, माधव के लिए 15,000 और 15,000 केशव के लिए। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो ये है एडजस्टमेंट। सेकेंड जो सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट थी आपके प्रॉब्लम में, इन दोनों का इफेक्ट मैंने कहाँ पे किया, तो बैलेंस शीट के क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट साइड 1,00,000 रुपीज़, एंड सेकेंड इफेक्ट जो भी जितने भी अमाउंट इंक्रीज हुई थी उसका इफेक्ट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स को इन देयर रेशो। ओके, तो पार्टनर्स को मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में उन पार्टनर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बाय गुडविल 25,000 फॉर राम, 15,000 फॉर माधव एंड 10,000 फॉर केशव। ओके,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट है, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यू ₹80,000 एंड 1,20,000। देखो पहले वाली लाइव लूज टूल्स की वैल्यू थी, लूज टूल की वैल्यू कितनी थी 50,000, बाद में कितनी हो रही है 80,000 हो रही है, मतलब दैट एसेट्स वॉज इंक्रीजेस बाय ₹30,000। तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेम एज इट इज़ लाइव स्टॉक भी जो था वो पहले 1 लाख था, बाद में कितने हो गया 1,20,000, मतलब यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज हो गया वैल्यू, दोनों की भी वैल्यू इंक्रीज हो गई। लूज टूल्स की 30,000 से इंक्रीज हो गया और लाइव स्टॉक 20,000 से इंक्रीज होगा। अगर वैसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड टू लूज टूल्स एंड टू लाइव स्टॉक 30,000 एंड 20,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट वन बताया है वहाँ पे RDD ₹10,000। कितने हैं RDD ₹10,000, पहले 15,000 थे, RDD 10,000 हो गए, तो लेस RDD ₹10,000, आंसर आ रहा है 1,40,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 का। तो सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू RDD ₹10,000, टू RDD ₹10,000। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 5 का सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे एड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते तो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड का डिफरेंस दिख रहा है 50,000 और डेबिट साइड का डिफरेंस दिख रहा है 20,000। तो 50,000 में से 20,000 लेस करते तो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है ₹30,000। कितने रुपीज़ हो रहे हैं ₹30,000। वो 30,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन द रेशियो 5:3:2 में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद राम के लिए 15,000, माधव के लिए 9,000 और केशव के लिए 6,000 अभी ये ट्रांसफ़र होंगे उनके अकाउंट में। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया 15,000, 9,000 एंड 16 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000 फॉर राम, 9,000 फॉर माधव एंड केशव के लिए 6,000। ये हो गया फर्स्ट उनका वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। बाद में देखो वहाँ पे क्या दिया है कमीशन ₹2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव। तो उसका कमीशन निकालना है, तो कमीशन निकालने के लिए 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि वो 4 महीने काम कर रहा था तो उसने 4 मंथ के लिए निकाला होगा, कमीशन उसे 4 मंथ का देना है। तो आंसर आ रहा है क्या है 8,000। तो ये गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जो भी सस्पेंस अकाउंट है उसके अंदर हम ऐड करेंगे, जो भी हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा उसके अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके बाद में लिखा है, उसके बाद में लिखा है प्रॉफिट फॉर द 2018 वॉज एस्टिमेटेड फॉर ₹45,000 एंड केशव शेयर्स ने। अभी मतलब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उस पार्टनर का प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पे ये वर्किंग नोट है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते करंट ईयर प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ केशव फॉर 4 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे दिया है उन्होंने 45,000, कितने में कितना उनका शेयर, तो 2/10 है, 2/10। केशव देखो 5:3:2 मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 थे, उसमें से 2 पार्ट किसके हैं केशव के हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2/10। और वो 4 ही महीने काम कर रहा, उसने 4 ही महीने काम किया था फर्म के अंदर, दैट्स वाई 4/12। ओके बाद में प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,000। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट दिखाती हूँ। फर्स्ट इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट ₹3,000 अंडर अकाउंट केशव। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड 3,000 यहाँ पे लिख दिया है, दिखा सबको। ओके ये हो गए सारे एडजस्टमेंट। ओके फिर अभी क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते तो पहले केशव का टैली करना है, क्योंकि केशव की क्या हो रही है डेथ हो रही है यहाँ पे। तो केशव की टोटल आ रही है 82,000 और जो भी डिफरेंस है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, क्योंकि प्रॉब्लम में वैसे लिखा है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमें ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रांसफ़र, लिख दिया 82,000 केशव्स एग्जीक्यूटर्स लोन ₹82,000। बाकी के अकाउंट टैली करने के बाद हमें बैलेंस मिलता है 1,52,500 एंड 1,06,500। तो ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, राम कैपिटल, माधव कैपिटल, और ये है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 82,000। सिर्फ यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है, वहाँ पे मैंने क्या किया है, कमीशन और एज वेल एज कमीशन की अमाउंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए एंड एज वेल एज जो भी प्रॉफिट था वो भी ऐड कर दिया। सेपरेट से अकाउंट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन करके मैंने सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट लिखी। ये हो गया हमारा पूरा अकाउंट। ओके, इसके स्क्रीनशॉट निकालो, मैं टाइम देती हूँ आपको, स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि ये क्या अनसॉल्व प्रॉब्लम है, तो आपको स्क्रीनशॉट जरूरी है। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट बैलेंस शीट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।